So student, we are into phase 5 of the PGBP provisions, and according to phase 5 we have to do certain extraordinary sections of PGBP which are alternative in nature. The first section that we discussed yesterday was the presumptive income of a business class. If you are an individual HUF or a firm, meaning thereby you are a small assessee by the nature, at the same time your turnover is less than 200 lakh, that means your turnover is also less than a specified limit, definitely you are a small business person. It won't be possible for you to follow the rigorous provisions of income tax law. So income tax is saying, let us give you the opportunity to have very simple calculation, file very simple return. These people, they file ITR 4, very simple return, like you can submit the return within couple of minutes. 10 to 15 minutes is enough to submit a return of a person who follows 4480. And the presumptive income can be computed by applying some standard percentage which are assumed by income tax department. So if you are receiving turnover in the cash, or you did not receive it, it is outstanding, whatever is the nature, 8% of your turnover is the PGBP. And if you have received it by account pay check, account pay draft, ECS, before filing ROI, before filing your return of income, then we will be applying 6% on total turnover to determine the PGBP component. Yeah, one particular assessee can have both. Like our assessee is having 160 lakh as a total turnover. Out of that, 60 lakh was by account pay check and 100 lakh by any other mode. So here it will be 8%. So here it will be 8 lakh rupees profit, and for 60 lakh it will be 60% profit. For 60 lakh it will be 6% profit, that will be 3.6 lakh. So total profit for the year will be 3.6 plus 8 is equal to 11.6 lakh. So yes, definitely in examination you can have combination also. तो ये बात भी हमारी हो गई थी. So one thing is more important. Can I show higher profit than this 6% and 8%? Can I show higher profit than this? Please tell me. Can I show higher profit than this without any restriction? Yes. Yes, definitely I can show. But can I show lower profit than this under 4480? No. No, still it should be yes. I can show the lower profit, but I should not. Okay, because section says once you entered into 4480 regime, you must stay with the 4480 for at least 5 years. No matter whenever you want to take exit, you can take an exit. We are not going to force you to stay in 4480. But then what you have to do? Then what are the consequences if you are going outside the 4480 and declaring lower profit? Then what you have to do? 3 things. ये जल्दी जल्दी बोलो. What we are supposed to do? अगर हमें लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर करना है तो हमें क्या करना चाहिए? जल्दी बोलो. लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर करना है तो सर डिपार्टमेंट असेसी के ऊपर भरोसा नहीं करता. देन द असेसी सपोज टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. यू रिमेंबर दिस. गेट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड. Yes, very good, Ayush. Get the books of accounts audited, and you are not supposed to re-enter into 4480 for another 5 years cooling period. Okay, so this is the restriction. These 3 things you should remember. So who is not eligible here? 44AE assessee, they are transport assessees. 44AD professional assessees, and any assessees who is carrying on the business of the commission or agency, they are not eligible. Chalo, theek hai. So presumptive income from profession. This is applicable to mail fit company. What is mail fit company, sir? Medical, accountant, legal, engineer and architect, film artist, interior decorators, technical consultant and company secretary. It is applicable to this professional class only when their total income is less than 50 lakh rupees. And then the PGBP percentage that is assumed by the department is 50% of the
total turnover. Yes, you can declare the lower profit, but you need to maintain the books of account, get it audited, and then there is no concept of restriction of 5 years in 44 ADA. That is there in AD, but there is no concept of lock-in period of 5 years in 44 ADA or even AE. So today our target is to discuss 44 AE, transport industry. Okay. Today our target is to discuss transport industry. Section 44 AE is applicable on GTA. So what is GTA? Goods transport industry. Okay. This is not applicable on passenger transport. Therefore, I have to draw the truck. I did not draw the bus or car. It's truck. It's applicable to truck. Yeah, there can be different types of truck. So before Arun Jaitley sir, in 2016, I guess they amended the law. 2016 or 2017, they amended the law. Before this, okay, the law was very standard, very much standard. This transport people, they said we are uneducated people. हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, और क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग नहीं हो, आपका डिटेल पीजीबीपी हमें नहीं समझता. And we don't want anything on percentile basis either. कौन record रखेगा? We don't want to keep record of anything. How much money we have earned and how much money we have spent. We are not supposed to keep this particular record. We are not able to keep the records. तो हमें कुछ तो एकदम simple calculation दो. तो department gave them simple calculation. Presumptive income for GTA. For them, PGBP was equal to 7,500 per month. Fixed. 7,500 per month. Or let me write 7,500 per vehicle, per goods vehicle, per month, per vehicle, per month, or part of the month. I'll explain this. 7,500 per vehicle per month or part of the month. So this was the understanding for GTA. Now let us compute different scenarios. सर अगर कोई GT है जिसके पास 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक व्हीकल था, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक he had the vehicle. Full previous year he was having the vehicle. अप्रैल से लेके मार्च तक. So how will you compute the profit for him? 7,500 एक ही व्हीकल था, okay, into 12 month. तो कितना आएगा? What is PGBP? 7,500 into 12 is equal to 90,000 PGBP हो गया. इतना सिंपल. मैंने क्या बोला समझा आप लोगों को? स्टैंडर्ड नंबर फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने. 7,500 एक व्हीकल से आप प्रॉफिट कमाते हो ऐसे मान लिया गवर्नमेंट ने एक महीने में, और पार्ट ऑफ द मंथ शुड बी कंसिडर एज अ फुल मंथ. बस वही है. आपको समझा ये वाला कैलकुलेशन? समझा? प्लीज टेल मी. जीटीए का एकदम सिंपल कैलकुलेशन. एक ट्रक से आप एक व्हीकल से 7,500 कमाते हो. दिस इज अज्यूम्ड. चल ठीक है. तो सर अगर मेरे पास एक ट्रक पहले से था, एक ट्रक तो मेरे पास सर अप्रैल से लेके मार्च तक था, और एक और ट्रक मैंने जनवरी में परचेस किया. सर पकड़ लेते 18 जनवरी को परचेस किया, ये मार्च तक था. चलो ठीक है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी कुछ नहीं. 7,500 इंटू 1 ट्रक इंटू 12 मंथ, ये तो पहले ट्रक का कैलकुलेशन हो गया, प्लस 7,500 इंटू 1. लेकिन कितने महीने करूंगा अभी? जनवरी से लेके मार्च तक. 3 मंथ्स करना पड़ेगा सर. लेकिन जनवरी में तो हाफ जनवरी था नहीं. वो चलो पार्ट ऑफ द मंथ शुड बी कंसिडर एज द फुल मंथ. ठीक है ना? तो कैलकुलेट करते हैं. 7,500 इंटू 3, 22,500 प्लस 90,000 इज इक्वल टू 1,12,500. चलो ठीक है, ये भी ठीक है सर. और एक एग्जांपल देता हूं. ठीक है ना सर? मेरे पास ओपनिंग से ना 6 व्हीकल थे. मेरे पास 6 व्हीकल थे ओपनिंग से. अप्रैल से मेरे पास 6 व्हीकल थे. लेकिन कहीं पे तो सितंबर में, सर सितंबर की किसी डेट पे
मैंने 2 व्हीकल सोल्ड कर दिए सर, 2 व्हीकल सोल्ड कर दिए, मतलब मेरे पास है नहीं, मैंने नया नहीं लिया, मैंने बेच दिया व्हीकल। तो मुझे बताओ कितने व्हीकल आपके पास ओपनिंग से लेके अभी तक थे, अप्रैल से लेके मार्च तक कितने व्हीकल बच गए फिर आपके पास? 6 थे, सितंबर में आपने 2 बेच दिए, तो अप्रैल से लेके मार्च तक 4 थे ना, तो पहले उन 4 का निकाल लेते हैं। 7,500 इंटू 4 व्हीकल इंटू 12 मंथ, ये तो पूरे 12 महीने आपके पास थे, इनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, अभी जो 2 व्हीकल सोल्ड हुए हैं उनका भी तो 7,500 के हिसाब से निकलेगा। 7,500 इंटू 2 व्हीकल इंटू कितना मंथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ होते हैं। यस। हाँ। तो ये 6 मंथ ले लिया, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे 7,500 इंटू 4 इंटू 12 is equal to 3,60,000. 7,500 into 2 into 6, ये 4,50,000 आ रहा है क्या? ये जल्दी बोलो, 4,50,000 आ रहा है क्या ये? Yes. हाँ, तो आप लोगों को समझा कैलकुलेशन कैसे करना है? मैंने कांस्टेंट वाला एग्जांपल भी ले लिया, मैंने परचेस वाला एग्जांपल भी ले लिया, मैंने सेल वाला एग्जांपल भी ले लिया। डू यू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशंस? यस। हाँ, लेकिन ये ओल्ड कैलकुलेशन मैंने आपको बताए, ये अरुण जेटली सर ने अमेंडमेंट लाई थी, उसके पहले के कैलकुलेशन बताए। अब अरुण जेटली सर ने क्या अमेंडमेंट लाया, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ का बताता हूं। आपने छोटा छोटा टेम्पो भी देखा होगा ना, छोटा टेम्पो 4 व्हीलर जैसा रहता है ऐसा। हाँ, मैजिक। हाँ, मैजिक रहता है या टाटा एस वगैरह ऐसा कुछ तो रहता है, ठीक है ना। हम लोग इसको ना मतलब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में इसको छोटा हाथी बोलते हैं। छोटा सा टेम्पो रहता है, बहुत बड़ा नहीं रहता, ऑटो रिक्शा जैसे दिखता है। एक वो हो गया। फिर एक टाइप का टेम्पो जो रहता है वो थोड़ा बड़ा टेम्पो रहता है, इसको टाटा 520 520 ऐसा कुछ तो बोलते हैं। देखा होगा ना आपने टेम्पो, इसमें भी 4 ही टायर होते हैं। इसको टेम्पो बोला जाता है, बड़ा टेम्पो, अच्छा खासा हेल्दी टेम्पो। घर का सामान वगैरह शिफ्ट करने के लिए आप लोग यूजुअली 407, 520 नहीं, 407 होता है ये, 407 ये वाला रहता है, ठीक है। इससे बड़ा सर, और ये 9 फीट का होता है, 9 फीट का 10 फीट का होता है इसका लेंथ। सर इससे बड़ा टेम्पो होता है वो 12 फीट का होता है, 12 फीट 14 फीट का होता है, ठीक है ना। ये आइचर मोटर्स का होता है, आइचर मोटर्स का। इसमें पीछे 2 टायर होते हैं, आगे एक होता है। चलो ठीक है। इससे बड़े बड़े भी ट्रक होते हैं सर, हेवी गुड्स व्हीकल। आपको क्या लग रहा है, सब इन सारे ट्रक में से सेम प्रॉफिट आता होगा क्या? नहीं। सारे ट्रक में से सेम प्रॉफिट आ रहा है ना। अभी की तारीख में तो गवर्नमेंट का यही है ना, 7,500 पर ट्रक। हमने ट्रक का कैटेगरी नहीं देखा, ये कोई भी ट्रक हो सकता है, बड़ा ट्रक, छोटा ट्रक, मीडियम ट्रक, लाइट गुड्स व्हीकल, हेवी गुड्स व्हीकल, कुछ भी हो सकता है। तो हमने बोला नहीं नहीं सर, ये ट्रक वाइज इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अरुण जेटली सर ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया ट्रक को। एक को बोला उन्होंने हेवी गुड्स व्हीकल, और दूसरों को बोल दिया अदर गुड्स व्हीकल। ये जो अदर गुड्स व्हीकल होंगे ना, इसमें लाइट और मीडियम आ जाते हैं। इनका तो वही नियम 7,500 पर व्हीकल पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है ना, और पार्ट देयर ऑफ। तो ये तो हो गया इनका लॉ अदर गुड्स व्हीकल का। अरुण जेटली सर ने हेवी गुड्स व्हीकल का लॉ चेंज कर दिया। पहले तो उन्होंने हेवी गुड्स व्हीकल को बोला
कि जिस गुड्स का ग्रॉस वेट मोर देन 12,000 kg होता है, 12,000 kg, 12,000 kg मतलब बड़े बड़े ट्रक का ही 12,000 kg का वेट होता है, 12 टन की बात हो रही है यहाँ पे। जिस व्हीकल का वेट, खाली व्हीकल का वेट, गुड्स के साथ नहीं, अनलैडन वेट, अनलैडन मतलब उसमें कोई गुड्स लोड नहीं है, ब्लैंक व्हीकल का वेट 12,000 kg से ज्यादा होता है, उसको पहले तो हम हेवी गुड्स व्हीकल बोलेंगे। अब हेवी में भी कैटेगरीज होती है यार, हेवी में भी ये वाला भी हेवी में आएगा, ये वाला भी हेवी में आएगा, इससे बड़े बड़े जो लॉरीज होती है वो भी हेवीज में आएंगी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला फिर से वो प्रॉब्लम होगा, हेवी में भी अनजस्टिफिकेशन होगा, तो उन्होंने ना हेवी का स्टैंडर्ड नंबर नहीं रखा लाइक दिस, ठीक है ना। उन्होंने हेवी का नंबर रख दिया, ये बोल दिया यहाँ पे ₹1,000, ₹1,000, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बोला पर टन, ₹1,000 पर टन, पर व्हीकल, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। बोलो समझा तुम लोगों को मैंने क्या बोला? पर टन, पर व्हीकल, पर मंथ। अभी लॉजिकल है ना, जितनी बड़ी गाड़ी होगी, जितनी हेवी गाड़ी होगी, उतना ज्यादा प्रॉफिट निकलेगा। जैसे समझो तुम्हारी कोई एक व्हीकल है जिसका वेट है 21,000 kg, बाबा 21,000 kg मतलब कितना टन? 21. 21 टन। तो इसका प्रॉफिट कैसे निकलेगा? पीजीबीपी इज इक्वल टू 1,000 इंटू 21 टन इंटू 12 मंथ। निकालो 1,000 इंटू 21 इंटू 12, 2,52,000 आ गया। तुमको समझ रहा है? 2,52,000 आ गया इसमें से। समझा इसका कैलकुलेशन? समझा क्या आपको? हाँ। अगर यही पुराना वाला होता तो लॉ, तो 7,500 मल्टीप्लाई बाय 12 होता, यहाँ पे पहले वाले लॉ के हिसाब से 90,000 आता, जो गलत था, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी आपने पूरे साल भर में 90,000 कमाए, ऐसा डाइजेस्ट ही नहीं होता था। अभी बड़ी गाड़ी है तो बड़ा इनकम दिख रहा है तो अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रिजम्पटिव की बात होती है कि प्रिजम्पटिव में ऐसी बातें होती है। मुझे बताओ, आपने रोड पे कभी ना कभी वीआरएल लॉजिस्टिक का तो गाड़ी देखा होगा, वीआरएल लॉजिस्टिक करके, कर्नाटका की है शायद कंपनी, वीआरएल लॉजिस्टिक। आपको क्या लग रहा है इतनी बड़ी कंपनी प्रिजम्पटिव में जाएगी क्या? उसके 200-300 कितने ट्रक होंगे मार्केट में पता नहीं, ठीक है ना, 300 ट्रक है मान लेते हैं उनके। हाँ, इतनी बड़ी कंपनी जाएगी क्या प्रिजम्पटिव में? ऐसे बोलेगी हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। पहले तो ये कंपनी है, इतने बड़े बड़े लोग जाएंगे क्या इसमें प्रिजम्पटिव में? नहीं। तो इसमें कौन जाता है प्रिजम्पटिव में? कौन जाता है? छोटे छोटे लोग जाते हैं सर। छोटे लोग मतलब कौन? अरे जिसका 1 टेम्पो है, 2 टेम्पो है, 4 टेम्पो है। तुम्हारे एरिया में भी रहेगा ना कोई तो टेम्पो वाला, रहेगा ना, आपके आजू बाजू में कोई ना कोई टेम्पो वाला रहेगा, 1-2 टेम्पो जिसका रहता है, 1-2 ट्रक रहता है। छोटे छोटे लोग होते हैं, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट बोलता है जो पर्सन गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओन करता है नॉट मोर देन 10, जिसके पास 10 से ज्यादा गाड़ी नहीं है, मतलब 10 तक चलेगा, नॉट मोर देन 10, वो एलिजिबल हो जाता है इस सेक्शन में। तो लैंग्वेज देखो, प्रिजम्पटिव इनकम फॉर ट्रांसपोर्टर, गुड्स ट्रांसपोर्टर who does not own a vehicle more than 10 at any time during the previous year। आपको any time during the previous year में आपके पास गुड्स व्हीकल मोर देन 10 नहीं थे। चलो ठीक है सर, अच्छा हो गया, नहीं थे तो ये छोटा व्हीकल वाला है। अच्छा 10 का भी सर कॉम्बिनेशन कैसा है? हेवी गुड्स व्हीकल होगा तो लॉ क्या बना दिया हमने, जिसका 12,000 kg से ज्यादा वेट है, तो हमने लॉ बना दिया 1,000 रुपीज पर टन, पर व्हीकल, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। और यहाँ पे टाइपिंग एरर है, जरा ही ठीक कर दो, 75,000 नहीं है, 7,500 है। फॉर एनी अदर गुड्स व्हीकल 7,500 पर व्हीकल, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे टन वगैरह से लेना देना नहीं है। ओके, इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आप लोग मेरे लिए प्लीज आंसर कंप्यूट करोगे। यहाँ पे बाजू में आंसर हम लोग कंप्यूट करेंगे। Mr. X come in the business of operating goods vehicle as on 1/4/2020. He purchased the following vehicles during the year 2021. Compute his income under section 44AE. AE मतलब GTA। चलो ठीक है, पहले वाला व्हीकल इसका वेट है 7,000। पहले तो बोलो ये अदर गुड्स व्हीकल है कि हेवी गुड्स व्हीकल है? Other goods. अदर गुड्स व्हीकल है, ठीक है ना।
कितनी क्वांटिटी आपके पास? 2, और ये अप्रैल से आपके पास है, तो कैसे कंप्यूट होता है इसका? जल्दी कंप्यूट करो प्लीज, एवरीवन प्लीज कंप्यूट इट। जल्दी जल्दी कंप्यूट करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, $7,500 इंटू 2, इसका आ रहा है 1,80,000। ठीक है, आगे चलता हूं। ये 6,500 वाली व्हीकल है, तो ये भी अदर गुड्स व्हीकल हो गई, एक ही गाड़ी है, और 15 मार्च को लिया है, मतलब ओनली हाफ मंथ आपके पास था, फिर भी हम कितना लेंगे? 1 month. 1 मंथ पूरा लेना पड़ेगा, मतलब 7,500 आएगा इसका। हाँ. 10,000 की गाड़ी है, 10,000 किलो की गाड़ी है, तो ये भी अदर गुड्स व्हीकल है। 3 गाड़ी हमारे पास है, 16 जुलाई से हमारे पास है, तो जुलाई तो पूरा लेना पड़ेगा। तो जुलाई के पहले कौन से महीने चले गए? अप्रैल मई जून, 3 महीने नहीं थी गाड़ी, चलो ठीक है, तो 9 महीने थी हमारे पास, तो 7,500 इंटू 3 इंटू 9 मंथ, 2,02,500. 2,02,500, ये भी ले लिया मैंने यहाँ पे। ये 11,000 की है, ये भी अदर गुड्स व्हीकल है, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही गाड़ी थी, और जनवरी से हमारे पास है, जनवरी से हमारे पास है, तो सर 7,500 इंटू 3, तो सिंपल है 22,500। ये वाली गाड़ी 15,000 किलो की है, तो ये हेवी गुड्स व्हीकल है। हाँ, इसका कंप्यूट करके बताओ। ये 2 गाड़ियां ली गई है 29 अगस्त पे, अगस्त खत्म होने वाला था, 2 दिन रुक जाते तो पैसा बच जाता थोड़ा, ठीक है ना, लेकिन अभी अगस्त पूरा लेना पड़ेगा आपको। जल्दी बताओ, पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं करूंगा। यस वैष्णवी राइट है, शिव राइट है। तो सर ये कैसे आएगा? 1,000 इंटू 15, क्योंकि 15 टन का गाड़ी है, तो 15,000 kg डिवाइड बाय 1,000 kg मैंने कर लिया, इंटू 2 व्हीकल, 2 गाड़ी हमारे पास है, तो अगस्त से लेके मार्च तक, तो अप्रैल में जून जुलाई 4 महीने हमारे पास गाड़ियां नहीं थी, लेकिन 8 महीने थी, तो 8 मंथ का करना पड़ेगा, तो ये आता है 2,40,000। वैसे लास्ट वाले का भी देखो, ये भी हेवी गुड्स व्हीकल है, ठीक है ना, ये 1 महीने का है, एक ही गाड़ी हमारे पास है, सॉरी, और 23 फेब पे लिया है, 23 फेब, फिर भी हम कितना मंथ मानेंगे? ये कितना मंथ काउंट होगा यहाँ पे? फरवरी और मार्च। फेब और मार्च 2 मंथ काउंट होंगे, फेब और मार्च, तो ये 15,000, 1,000 इंटू 15 इंटू 2, तो ये 30,000 होगा। जरा टोटल ले लेंगे प्लीज कैलसी पे, 30,000 प्लस 2,40,000 प्लस 22,500 प्लस 202,500 प्लस 7,500 प्लस 1,80,000, क्या अपना टोटल 6,82,500 आ रहा है? यस। हाँ। अच्छा, एक बात तुमने यहाँ पे ऑब्जर्व करनी थी पहले, जब इतनी सारी व्हीकल दिखती है आप लोगों को अलग अलग, तो एक बार आपको ये टोटल करना चाहिए था कि गाड़ियां है कितनी। 2 + 1 = 3, 3 + 3 6 7 8 9 10, एग्जैक्ट 10 गाड़ी है। बोलो एलिजिबल है कि नहीं है?
नहीं, more than 10 चाहिए ना. नहीं नहीं, मोर देन 10 नहीं चाहिए. ही शुड नॉट ओन मोर देन 10. तो अप टू 10 चलेगा ना. हाँ. अप टू 10 चलेगा, इसलिए ये एलिजिबल है. अच्छा, इन्होंने दूसरा एक यहाँ पे सब क्वेश्चन पूछा है. वुड योर आंसर चेंज इफ गुड्स व्हीकल परचेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल वो पुट टू यूज ओनली इन द मंथ ऑफ जुलाई. तो बोलते ये अप्रैल में जो 2 गाड़ियां लिए ना, ये अप्रैल में यूज नहीं करके जुलाई में आपने यूज किया. मुझे बताओ, हम एक्चुअल बेसिस पे टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं कि प्रिजम्पटिव बेसिस पे? Presumptive basis पे. और आपको क्या लग रहा है, डिपार्टमेंट के लिए पॉसिबल होगा क्या? एक्चुअल में तुमने गाड़ी कब बाहर निकाली वो देखना पॉसिबल होगा क्या? डिपार्टमेंट के एंगल से सोचो. नहीं. पॉसिबल ही नहीं नहीं. होगा. तो आपको क्या लग रहा है, हम प्रिजम्पटिव इनकम कौन से डे से चालू करेंगे? डेट ऑफ ओनरशिप से, डेट ऑफ ओनरशिप से और डेट ऑफ पुट टू यूज से. कौन से डेट से चालू करेंगे हम? Date of ownership से. डेट ऑफ ओनरशिप से हम चालू करेंगे. तो हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, भले आपने जुलाई में उसको पुट टू यूज किया तभी भी. बस उतना ही लिखना था. ये देखो, ये 6,82,000 का 500 का कैलकुलेशन. और यहाँ पे उन्होंने लिखा द आंसर वुड रिमेन सेम इवन इफ द 2 व्हीकल्स परचेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल वो पुट टू यूज ओनली इन द मंथ ऑफ जुलाई सिंस द प्रिजम्पटिव इनकम हैज टू बी कैलकुलेटेड पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर विच व्हीकल इज ओन्ड बाय मिस्टर एक्स. तो डेट ऑफ ओनरशिप से हमारा कैलकुलेशन होता है. आई होप ये क्लियर है आप लोगों के लिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं. और एक क्वेश्चन इसका है, मैं लूंगा. और एक क्वेश्चन है इसका, ढूंढना पड़ेगा, रुको.